وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ پی ٹی آئی کے جو یہ سندھ حقوق کی مارچ کی کال ہے، ہم اس کو لبے کرتے ہیں۔ یہ سندھ حقوق جو مارچ ہے تو یہ حق کا آواز بلند کرنے کے لیے سندھ کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو پورے حقوق ملنے چاہیے۔ سندھ حقوق مارچ عوامی امنگوں کا ترجمان، شہر شہر کریا کریا عوام پی ٹی آئی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ شہروں میں ریلیوں اور بڑے جلسوں کی تیاریاں، حقوق کی خاطر جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم۔ سندھ کے عوام زرداری مافیا سے نجات کے لیے باہر نکلیں۔ تحریک انصاف سندھ حقوق مارچ میں بھرپور شرکت کریں۔ علاقائی جماعتوں کو مسترد کر کے وفاق کا ساتھ دیں۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ 13.5 سال سے سندھ پر حکومت کرنے والوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ کراچی کے عوام کو ٹینکر مافیا اور گراں فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مارچ صوبائی حکومت کی ناکامیوں، مسائل اور جرائم میں اضافے کے خلاف ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب۔ حکومت سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات فراہم کر رہی ہے۔ سی پیک وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے تجارتی سرگرمیوں کا باعث بنے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ تحریک عدم اعتماد کھوکھلے نعرے ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود۔ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا مقصد اربوں کی چوری پر پردہ ڈالنا ہے۔ عوام کی دولت لوٹنے والے کیسے ملک کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ ماضی کے حکمرانوں نے ملکی مفاد پر ذاتی فائدے کو ترجیح دی۔ وزیر اعظم عمران خان سچے اور محب وطن لیڈر ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا جنگی سیدہ میں جلسے سے خطاب۔ اپوزیشن اقتدار کی خاطر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم گھبرانے والے نہیں، عدم اعتماد والے اپنا شوق پورا کر لیں۔ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے گفتگو۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال، بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 1 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بھارتی جارحیت کے 3 سال مکمل۔ اگلے ہی دن پاکستان کا دندان شکن جواب، بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تحریک آزادی کو دبانے کے مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار گرفتار۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات کشمیریوں کو ہرگز مروب نہیں کر سکتے۔ جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کیے گئے جنگی جرائم اور نسل کشی کے ثبوت مٹانا شروع کر دیے۔ مقامی میڈیا کی آن لائن آرکائیوز اور کئی دہائیوں کے تشدد اور جنگی جرائم کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا۔ فرانسیسی جریدے لی ایکسپریس کی رپورٹ۔ بھارتی سرزمین مسلمانوں کے بعد سکھوں کے لیے بھی تنگ۔ مسلمان خواتین حجاب اور سکھ پگڑی نہیں پہن سکتے۔ ہندوتوا نظریے اور RSS کی دہشت گردی کے خلاف مسلمان، سکھ اور عیسائی متحد۔ روس یوکرین تنازع لڑائی کیف کی گلیوں تک پہنچ گئی۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین نے مزید پابندیاں لگا دیں۔ سلامتی کونسل میں امریکی مذمتی قرارداد روس نے ویٹو کر دی۔
यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा और दीगर शहरियों का इनखला जारी। मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को पोलैंड मुंतकिल कर दिया गया। PIA के 2 तैयारे कल पोलैंड रवाना होने के लिए तैयार। पाकिस्तानी सफारत खाना तमाम अफराद से राब्ता करके उन्हें मालूमात मुहैया कर रहा है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई अजला में जुज़वी तौर पर अबर आलूद। शिमाल मशरकी पंजाब कश्मीर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जान तो लगाएंगे और आउट डाउन द लेग साइड। PSL 7 का फातेह होगा कौन? मुल्तान सुल्तान्स एजाज का दफा कर पाएंगे या लाहौर कलंदर्स पहली बार टाइटल जीत सकेंगे? फाइनल कल शाम 7:30 बजे लाहौर में होगा। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का 24 साल बाद दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। कोरोना टेस्ट मंफी आने के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच शामिल। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर होंगे बराह रास्त। ऑस्ट्रेलिया यूथ ड्रिवन और हर सू रंग बिरंगे फूलों की बहार। कराची में सहरोजा फूलों की नुमाइश। फूलों की मुताबिक अक़साम लोगों की तवज्जो का मरकज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। सिंध में 14 साल से बरसरे इक्तदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत की करप्शन, अकरबा परवरी, मेरिट की धज्जियां बिखेरने, तरक्याती कामों में खुदबुर्द और आवाम का पैसा हथियाने समेत अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल पर आवाम की दादरसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूक सिंध मार्च का आगाज कर दिया है। घोटकी में मार्च के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के अवाम ने ज़ालिमाना और नाइंसाफ़ियों पर मबनी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। सिंध के अवाम नाकाम सूबाई हुकूमत से तंग हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरना है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान का मंशूर पूरे सिंध तक पहुँचाएंगे। अवाम आइंदा इंतखाबात में सिंध से माल बनाओ पार्टी से निजात हासिल करेंगे। इससे पहले सिंध भर से काफिले सिंध हुकूक मार्च में शिरकत के लिए घोटकी पहुंचे। लोगों की बड़ी तादाद PTI की क़यादत को अपने दरमियान देखकर खुश हुई और वालिहाना इस्तकबाल किया। मार्च की गुजरगाहों को PTI के झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च में अवाम का जोश व जज्बा काबिले दीद है। शरका ने सूबे में करप्शन और हुकूमती राहली के खिलाफ जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के आज़म का इजहार किया है। इस बारे में मजीद जानते हैं शराज अली हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिंध हुकूक मार्च का जो आगाज़ हुआ था वो इस वक्त शुरा जो है वो सखर के करीब पहुंचने वाले हैं और सारा दिन आज जैसे ही हुकूक मार्च का आगाज़ हुआ था तो बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी सिंध हुकूक मार्च में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने लीड किया इस काफ़िले को और कमो शहीद से इस काफ़िले का आगाज़ हुआ। और जूँ ये काफ़िला वहाँ से निकला तो लोगों का समंदर जो है वो मौजूद था और बड़ी तादाद में कारकुनान सिंध के अवाम ने जो है इस काफ़िले को वेलकम किया और शामिल होते गए। जूँ काफ़िला आगे बढ़ता गया उसी तरह रश भी बढ़ता गया और लोगों की तादाद जो है इसमें शामिल होती गई। मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूक मार्च का जो है इस वक्त पड़ाव जो है वो पन्नो आकिल और मीरपुर माथेलो और सखर के दरमियान है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर में, जहाँ पे बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया गया है। मीरपुर माथेलो में भी बहुत बड़ी एक रैली और जलसे की सूरत हाल थी और वहाँ पे भी शाह महमूद कुरैशी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन
चेयरमैन उन्होंने खिताब वहाँ पे किया था, दीगर कायदीन ने खिताब वहाँ पे किया था, और उसके बाद अब वो काफ़िला रवां दवा है सक्खर की जानिब। सिंध हुकूक मार्च के जो शुरका हैं बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूक मार्च का जो मकसद था वो यही था कि सिंध में जो तरक्याती काम नहीं हो पा रहे उनको कराया जाए, सिंध के में जो आगाज़ किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़न है सिंध की तरक्की का, उसके हवाले से जो है लोगों में फराहम की जाए, आगाही फराहम की जाए। तो आज बड़ी तादाद में लोगों ने इस मार्च को जो है वेलकम भी किया है, और रवां दवा है काफ़िला, और सारा दिन कल से भी हम जब से देख रहे हैं कि जब से ये तैयारी इस मार्च की शुरू हुई तो तब से भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो शामिल हुई थी इस मार्च में। शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने इस लॉन्ग को जो है लॉन्ग मार्च को जो है वो लीड किया है, और इस वक्त जो काफ़िला है वहाँ पे मौजूद है। दीगर कायदीन जो हैं उसमें हलीम आदिल शेख हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, मुबीन जतोई हैं, वो भी शामिल हैं। दीगर जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी वो भी उसमें काफ़िले में शामिल है। तो एक हमने बड़ा वो एक समा देखा, सारा दिन हम जब से सुबह से कवरेज करते आ रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं इस वक्त सक्खर में। तो जलसा गाह में भी लोगों को जो हमने देखा है कि बड़े जोशो खरोश है, और शाम से ही यहाँ पे जलसा गाह में भी, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो मार्च के साथ हैं, और हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात में मौजूद हैं जो वेलकम कर रहे हैं इन रैलीज़ को, आते आ रहे हैं। और जो एक पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो पैगाम है वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध की आवाम के लिए, वो दिया जा रहा है, और उसको सुनने के लिए और वो जो आगाही मुहिम है उसको देखने के लिए जो है हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। पिंडाल भी तैयार है, और बड़ा जलसा जिसके लिए सक्खर की आवाम, सिंध की आवाम इंतज़ार कर रही है। जो ही ये काफ़िला यहाँ पे पहुँचेगा तो इस जलसे का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। और इस वक्त जो जलसा है, जो शुरका हैं मार्च के, वो रोड़ी और सक्खर के दरमियान वहाँ पे पहुँचे हैं। जो ही ये काफ़िला अंदर जलसे गाह में आएगा तो ये जलसा गाह जो है वो तमाम मुकम्मल तौर पे खचाखच भर जाएगी, और उसके बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया मुख्तलिफ़ मकामात पे, तो उनका कहना यही था कि सिंध की आवाम अब जाग चुकी है, क्योंकि इस मार्च के बाद जो है सिंध की आवाम जाग चुकी है, और मुख्तलिफ़ मकामात पे वो किया जाएगा जब इसका। और मैं आपको ये मज़ीद इस मार्च के हवाले से ये भी बताऊं कि ये मार्च यहाँ से होता हुआ लाड़काना में जलसा होगा, लाड़काना के बाद नवाब शाह और दूसरी मकामात पे भी जलसा जो है वो किया जाएगा, और ये मार्च यूँ रवां दवा जारी रहेगा। जी शिराज अली, यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं जिस तरह से अब लोग मौजूद हैं जलसा गाह में और इंतजामात किए गए हैं। काफिला अभी पहुंचने वाला है सक्खर में जलसा होगा, क़याम करेगा, पड़ाव करेंगे, या फिर ये मार्च आगे बढ़ता रहेगा, रात भर भी आगे बढ़ता रहेगा? और टेम्परेचर की सूरत हाल से आगाह कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी, टेम्परेचर यहाँ पे सक्खर में मैं बताऊँ कि आपको कि शदीद सर्दी है इस वक्त। यहाँ पे सर्दी है और दिन में गर्मी थी, लेकिन उस हवाले से भी लोगों में बड़ा जो है वो जोशो जुनून है। और ये मार्च जो है आज सक्खर में आके पड़ाव करने के बाद सक्खर में जलसा जब इख्तिताम पजीर होगा तो यहाँ फिर रुकेंगे, और कल फिर दिन को जो है कल सुबह में फिर आगाज़ होगा यहाँ से शिकारपुर के लिए, और शिकारपुर में और जेकबाबाद में जो है वहाँ पड़ाव डालेगा, वहाँ पे मुख्तलिफ़ मकामात पे खिताब करेंगे। और फिर लाड़काना में, आज सक्खर में है, कल लाड़काना में जो है बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिराज अली, आप हमें आगाह करे थे। सक्खर में आप मौजूद हैं और सिंध हुकूक मार्च के शुरका सक्खर पहुंचने वाले हैं जहां पर तैयारियां की गई हैं। और वैसे तो शिराज अली कह रहे हैं कि टेम्परेचर अभी कम है, रात के वक्त में सर्दी है, लेकिन सियासी टेम्परेचर और शुरका का टेम्परेचर काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे खबरनामे में। सिंध हुकूक मार्च के मौके पर अवाम का कहना है कि वो नाकाम सूबाई हुकूमत से अब तंग आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ को सिंध में हुकूमत का मौका मिलना चाहिए। हम उसको लबैक करते हैं, और हम रात दिन पीटीआई के जो ये सिंध हुकूक की मार्च की काल है, हम उसको लबैक करते हैं और करेंगे। सिंध के साथ जो 25 साल से पीपल्स पार्टी की नाजायजियाँ, रोड, तालीम, अमन अमान, इधर लाकानूनियत की इंतहा है, और हम इसको पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिंध हुकूक जो मार्च है तो ये हक का आवाज़ बुलंद करने के लिए, जिन मज़लूम कौम के साथ जुल्म किया गया है उनके लिए आवाज़ उठाने की है ये जदोजहद है। सिंध के लोगों का हक है कि इनको पूरे पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। इसी तरह तहरीक इंसाफ जिस तरह पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, और उनको चाहिए कि सिंध में हकूक़ दे लोगों को, उनको पूरा हक दिया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम की आवाज बनकर उठ खड़ी हुई है। सिंध हुकूक मार्च का ऐलान किया तो अवाम की कसीर तादाद हकीकी तब्दीली के लिए सड़कों पर निकल आए। सिंध के अवाम सूबे में करप्शन और पीपल्स पार्टी हुकूमत की बैड गवर्नेंस का बोझ उठा उठा कर थक चुके हैं। इस्तेहसाली निजाम से तंग सिंध के लोग अपने मसाइल के हल के लिए पीटीआई की अवाम दोस्त पॉलिसी की जानिब देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत की नाअहली और करप्शन तले दबे अवाम की आवाज बनने का ऐलान किया तो लाखों लोग सड़कों पर आ गए। सिंध में शहर शहर करिया करिया अवाम पीटीआई की आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि बरसों से इक्तदार की कुर्सी पर बिठाने वाले अवाम के लिए अब तक उन्होंने क्या किया। अंदरूने सिंध लाकानूनियत और जुल्म की चक्की में पिसने वाले बेबस लोग अब तब्दीली की तरफ देख रहे हैं जो सिर्फ इमरान खान की क़यादत में ही मुमकिन दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूक मार्च का ऐलान किया तो अवाम की कसीर तादाद हकीकी तब्दीली के लिए पीटीआई के परचम थामे घरों से निकल आई। घोटकी से चलने वाला तब्दीली का ये कारवां जैसे जैसे कराची की जानिब बढ़ेगा इसमें लोग शामिल होते जाएंगे और शहर कायद पहुंचकर इंसानों का ये समंदर जुल्म और करप्शन के निजाम को चैलेंज करेगा। वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सिंध के अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए बाहर निकले। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है। अवाम इलाकाई जमातों को मुस्तरद करके विफाक का साथ दें। सिंध हुकूक मार्च अवामी उमंगों का तर्जुमान है। वज़ीर ममलकत इत्तलाआत और नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि सिंध हुकूमत की नाकामियों, अवामी मसाइल और जराइम में बेहोशरुबा इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ का घोटकी से कराची तक मार्च अवाम की आवाज़ है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 13.5 साल में सिंध के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। एम्बुलेंस की सहूलत न होने पर मरीजों को रेडी पर अस्पतालों में लाया जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत ने कहा कि कराची के आवाम को टैंकर माफिया और गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। फारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इतनी करप्शन की कि वहां के चूहे भी अरबों रुपए की गंदुम खा गए। उन्होंने कहा कि सिंध के वज़ीर खुराक का असेंबली फ्लोर पर अरबों रुपए की करप्शन के एतराफ पर बिलावल की खामोशी सवालिया निशान है। उन्होंने इस्तफसार किया कि सिंध में जराइम और बदअमनी का जिम्मेदार कौन है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों ने हमेशा मुल्की मफाद के बजाय ज़ाती मफादात की सियासत की है। इस्लामाबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की दौलत लूटने वाले कभी भी मुल्क के खैर खां नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा है। जलसे की तफसील बताएंगे अनीस आबान। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि इक़्तिदार संभाला तो मुल्क बहरानों में घिरा हुआ था। साबका हुक्मरानों ने मुल्क की दौलत लूट कर बैरून मुल्क असासे और जागीरें बनाई। उन्होंने कहा कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च का मकसद अरबों रुपए की चोरी पर पर्दा डालना है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इनकी औलादें या जरदारी या उनकी औलादें कभी बीमार हुई और पाकिस्तान के किसी अस्पताल में गई, इनके इलाज होते हैं मुल्क से बाहर। इनको क्या फिक्र है मुल्क के अंदर सेहत का निजाम ठीक हो कि नहीं हो? जरा बताएं तो मुतालबा है क्या इनका, सिवाय अपनी चोरी की जायदाद को बचाने के लिए इनके पास मुतालबा क्या है? दूसरा, अब पाकिस्तान के अवाम को बताएं तो इनके लिए निकले क्यों? असद उमर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर को सारी दुनिया में सराहा गया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान को दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया से इस वक्त अच्छे मरासिम चाहता है। पाकिस्तान किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता, लेकिन पाकिस्तान किसी के सामने अपना सर भी झुकाने को तैयार नहीं है। रुकन कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और दीगर मुकर्रीरीन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पहली मरतबा अवाम का पैसा अवामी फलाह बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया गया है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इक्तसादी सरगर्मियों के फरोग से पाकिस्तान खित्ते में माशी हब बनकर उभर रहा है। मुल्की मसनूआत को दुनिया भर में मुतारिफ कराने के लिए हुकूमत तमाम इक़दामात कर रही है,
لاہور میں انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع امکانات موجود ہیں. حکومت کاروبار دوست پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سی پیک وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے تجارتی سرگرمیوں کا باعث بنے گا. پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے. Pakistan today has improved tremendously in ease of doing business. It's very unusual for a country to take 28 steps in a single year. What does that tell you, my friends from Africa and Central Asian republics? That tells you that if you want to do anything in Pakistan, we will bend over backwards to make it easy for you so you don't get into any kind of roadblock. In fact, we will take pride in the efficiency with which we will respond to you. That is true for the government and that is true for the suppliers and manufacturers, some of you which are sitting here. Pakistan handled COVID very well. We got up very quickly, but the efficiency with which we managed, that efficiency is translating into a confidence in the world, that Pakistan will deliver what we promise. Pakistan is an efficient country. Pakistan is a very progressive country, and Pakistan can be proud of the fact that we've done this. اداروں کی مضبوطی، شفافیت اور میرٹ حکومت کی اولین ترجیح ہے. یہ بات صدر ڈاکٹر عارف الوی نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور پرامن بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے اور خصوصی افراد کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل حل کیے جائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ ملک اس وقت لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپوزیشن اگر لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو شوق پورا کر لے. سوابی کے علاقے پونٹیا میں نون لیگ اور ANP کے نمائندوں کی تحریک انصاف میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ PTI کے اراکین بکاؤ مال نہیں، وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. عوام نے انہیں وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے منتخب کیا ہے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ قوم ترقی کے سفر پر گامزن ہے. کرپٹ عناصر ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ اتحادی نظریاتی بنیادوں پر حکومت کے ساتھ ہیں. یہ اتحاد قائم رہے گا. انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کھوکھلے نعرے ہیں. ہارس ٹریڈنگ کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. آئندہ عام انتخابات میں بھی تحریک انصاف کامیاب ہوگی. زرداری صاحب جو ہے انہوں نے کیا انہیریٹ کیا تھا اور اس وقت ساری دنیا میں ان کی جداتیں. ابھی پیچھے اطلاع آئی تھی کہ جو مختلف اکاؤنٹس میں سے بے نامی لوگوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے تھے جو ٹھیکیداروں سے اور ادھر ادھر سے جمع کیے تھے. شہباز شریف کا حال دیکھیں آپ کہ شہباز شریف نے 21 ارب کی ٹیٹیاں لگیں، باہر سے پیسہ آیا. انہوں نے اپنے جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کی باہر بھی کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ کے 4 یا 6 ارب روپیہ آ جاتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ لاہور میں رکن قومی اسمبلی ریٹائرڈ بریگیڈیئر راحت امان اللہ نے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ سندھ کی کرپٹ حکومت عوام کے حقوق پر قابض ہے. PTI سندھ کے عوام کی خاطر باہر نکلی ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو انصاف، صحت کارڈ جیسی سہولت سے جان بوجھ کر محروم رکھا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس عوامی مسائل کے حل کا کوئی ایجنڈا نہیں. وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک فلاپ ہونے والا ڈرامہ ہے. نوشہرہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ اپوزیشن کے کئی ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. اپوزیشن کی افواہیں دم توڑ جائیں گی. تحریک انصاف کے ارکان کہیں نہیں جا رہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفد کے ہمراہ لاہور میں ملاقات کی. اس موقع پر موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور وفد کے ارکان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی.
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कल मज़ार-ए-कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं, जिसके लिए आवाम को मुतहर्रिक करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है, उम्मीद है आवाम हमारा साथ देंगे। ग्रीन लाइन कराची वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए तोहफा। मेगा मंसूबे की तकमील से शहर कायद के बासियों ने सुख का सांस लिया है। कराची के बासी अब इस इंतजार में हैं कि सिंध हुकूमत अपना ऑरेंज लाइन का वादा आखिर कब वफा करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से मोहम्मद सुहेब। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। 2016 में ऑरेंज लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद तो रखा गया, लेकिन इसकी तकमील महज बयानात तक महदूद रही। कराची के शहरियों के लिए 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। ये बसेस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी। फौरी तौर पर आपको जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हजारों बसें कराची शहर में नजर आएंगी। बसेस का 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं वो 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। हर 3 माह के बाद 600, 500 इस तरह बसेस आती जाएंगी। कराची वाले जहां ग्रीन लाइन से हासिल होने वाली जदीद सफरी सहूलियात से महजूज हो रहे हैं, वहीं लोग ऑरेंज बसों पर सफर का ख्वाब लिए शिकवे और शिकायत करते भी दिखाई देते हैं। कराची के लोग 20 साल से ट्रांसपोर्ट के मसाइल का शिकार है। सिंध हुकूमत को तो नदामत का एहसास भी नहीं होता। जितने जो प्रोमिसेस हुए हैं वो अभी सिंध में तो फुलफिल नहीं हुए हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है और क्या कर रही है। सिंध हुकूमत ने पागल बनाया हुआ है 5 साल से। अगर ये ऑरेंज लाइन को ओके कर दें तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी औरंगी वालों को। सिंध गवर्नमेंट तो सारा झूठ के दावे करते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कौन सा काम अच्छा किया आज तक। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस शहरी ट्रैफिक के मसाइल से भी दो चार हैं। 5 साल से ताख़ीर का शिकार ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। ये मंसूबा अगर जल्द अज जल्द मुकम्मल ना हो पाया तो कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी। मोहम्मद ज़ुहैब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।